Hello dear student, in last lecture we have discussed about the dimensional formula of various physical quantity, and today we are going to discuss about the new and the last topic of this chapter, which is dimensional analysis and its applications. So what is the topic? What is the purpose behind that topic? Checking the dimensional consistency of an equation. मतलब कोई भी इक्वेशन अगर आपको फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में अगर दिया है तो वो डायमेंशनली वैलिड है कि इनवैलिड है, वो इस थ्योरी में हमें देखना है। आया समझ में? ठीक है, तो कोई एक इक्वेशन से हम स्टार्ट करते हैं। कोई एक इक्वेशन डायमेंशनली जो वैलिड है वो इक्वेशन से हम स्टार्ट करते हैं और उसको प्रूव करते हैं कि वो डायमेंशनली वैलिड है। तो एक इक्वेशन हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में, x इज इक्वल टू x0 प्लस v0t प्लस 1/2 at स्क्वायर, वेदर इट इज डायमेंशनली वैलिड और नॉट। लेट्स ट्राई। x इज इक्वल टू x0 v0t प्लस 1/2 at स्क्वायर इज द इक्वेशन। व्हाट इज x here? x is the distance covered by any object at time t. Clear? What is x0 here? Again it is a distance covered by any object at time t is equal to 0. What is v0? It is initial velocity. Initial velocity, what does it mean by the velocity at time t is equal to 0? What is t here? T is a time. Obvious, 1/2 is a constant and a is a acceleration. We already discussed about the acceleration, dimensional formula of acceleration, and t again is a time. So here I mention all the detail of this physical quantity and the equation. So let's begin with left hand side. First, write down the dimensional formula of the left hand side quantity. Put it into the square bracket. What is the distance? What is the dimensional formula of distance? It is L1. इसमें मास नहीं है, मतलब m0, बट डिस्टेंस, तो डिस्टेंस किस में बेटा मेजर होता है? ऑलवेज हम मीटर में, मीटर दैट मीन्स इन टर्म्स ऑफ लेंथ। L1 वो टाइम नहीं है, मतलब t0। इन शॉर्ट डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला L1 होता है। ठीक है, चलो राइट हैंड साइड में कितने पार्ट है? देखो ये 1, 2 एंड 3। सो राइट डाउन द सेपरेट डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर x0. वी कैन से दैट इट इज अ पार्ट, it is the first part of right hand side. Clear? So it is also a distance, so we can write the equation like that: m0, l1 and t0. Is it okay? राइट हैंड साइड का x0 मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस अगेन क्या होगा? l1 ही होगा। चलो अगेन राइट हैंड साइड का सेकंड पार्ट, राइट हैंड साइड सेकंड पार्ट बताओ। सेकंड पार्ट बेटा कौन सा है? तो v0t है, v0t। यस, v0 is velocity. Dimensional formula of velocity we already discussed, L1 t minus 1, and for time it is only t1. Clear? चलो merge this formula m0 l1 and देखो यहाँ पे -1 है और यहाँ पे 1 है, तो इसका दोनों का बेस सेम है तो पावर का सम होगा। ठीक है, तो -1 + 1 0 हो जाएगा, दैट मीन्स t क्या हो जाएगा? अगेन 0। क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू द पार्ट 3 ऑफ राइट हैंड साइड, विच इज 1/2 at स्क्वायर। 1/2 at स्क्वायर, एज आई मेंशन अर्लियर दैट 1/2 is a constant term, so eliminate it. What is the dimensional formula for acceleration? Acceleration, it is L1 and t minus 2, and for t square, t is a time, so we can write the t1 here, but it's square, so put the 2 on the power of the time t.
Clear? So again merging this formula, m0 L1 and again minus 2 plus 2, it is 0 0. So we can conclude that the left hand side having the dimensional formula m0 L1 T0. Also the three parts of this right hand side also having the same dimensional formula. First part it is also same, second part it is also same, and the third part it is also same. So we can say that from equation star is dimensionally valid. So the purpose of this theory is to check out the equation whether it is dimensional valid or invalid. So by putting the dimensional formula of each and every quantities which is lying on the left hand side as well as the right hand side, we can check that all the terms which are given are dimensionally valid just because of the equal part of left hand side as well as the right hand side. But just focus that what I have mentioned that the separate quantity, not the merged quantity of the right hand side of part. I have separate the right hand side into three parts, first, second and third. तो मतलब ये फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, सेकंड का ये जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका सेकंड के साथ और लेफ्ट हैंड साइड है उसका थर्ड के साथ, तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड से क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी वो इक्वेशन डायमेंशनली वैलिड बोला जाएगा। आया समझ में? वैसा ही बेटा आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करते हैं। अपना एग्जाम्पल है 2.15, एग्जाम्पल 2.15, उसका क्वेश्चन आप बुक में देख लेना। 2.15 में आपको एक इक्वेशन दिया है काइनेटिक एनर्जी का 1/2mv² और यहाँ पे सामने दी है पोटेंशियल एनर्जी mgh। ये डायमेंशनली वैलिड है कि इनवैलिड है चेक करना है। तो हमारे पास रूल है कि LHS लो सबसे फर्स्ट। चलो LHS पार्ट क्या होगा, 1/2 mv² होगा। क्लियर? चलो उसको डायमेंशनली वैलिड मैंने 1/2, वो तो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, इट इज़ अ डायमेंशनलेस। सो फर्स्ट इट इज़ m फॉर मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वी आर हैविंग m1 डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मास, v is a velocity, for velocity it is L1 and t-1 of square just because of a square here। तो v का डायमेंशनल फॉर्मूला L1 और t-1 है और इसका पूरा स्क्वायर लिख दिया। चलो ये हो गया हमारे पास m1, ये हो गया L2, हो गया t-2। पावर का पावर होता है, उस दोनों का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो L1 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। चलो ये मर्ज कर दो इस फॉर्मूला को, तो आया आंसर m1 L2 एंड t-2। क्लियर? चलो वैसे ही हमारे पास राइट हैंड साइड में कौन सा पार्ट है, तो राइट हैंड साइड में पोटेंशियल एनर्जी है। चलो पोटेंशियल एनर्जी में बेटा क्या होता है, तो कि भाई m फॉर मास, g is a gravitational acceleration and h for height. All these quantity which are also mentioned in your textbook also. m for mass, g for gravitational acceleration and h for height. Clear? For mass it is m1. For gravitational acceleration that means L1 and t-2, we already discussed. And for height, so for height it is L1. Clear? So merge all the terms m1 L2 and t-2 here. L2 for what? Just because of the power of 1 and 1, so we have to add this power of length 1 plus 1 which is 2 and t-2 here. Clear? So left hand side and right hand side is having the same dimensional formula, so we can say that it is dimensionally valid. So we can say that it is
डायमेंशनली valid. Another example is given in your textbook, which is 2.16. You have given a 5 different physical quantities and you have to check whether it is dimensionally valid or not. So it is your homework for example 2.16, right? Then after, the second part of this theory. What is the second part of this theory? Deducing the relation among the physical quantity. Deducing the relation relation among the physical quantity. Let's explain these terms with example 2.17. Example 2.17. So it is very clear by this example, and the example is given like that. It is example based on a pendulum here above, which is hung by a string. So we all know that if it is oscillating from position 1 to 2 and then after returning back to the position 1, so it completes the one cycle over here. It completes the one cycle over here. यहाँ से अगर वो स्टार्ट होगा फिर सेकंड नंबर की पोजीशन पे गया, अगेन वो फर्स्ट नंबर की पोजीशन पे आया, तो उसने एक टोटल टाइम पीरियड कंप्लीट किया, ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं। तो आपको इसमें ऐसा दिया है कि ऐसा जो टाइम पीरियड है, ठीक है, सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड है? एक तो जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ पे, इट डिपेंड्स द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मास and the gravity. The three quantities are there. T, it depends, that means proportional to the length, mass and the gravitational acceleration. It is already given in your question. So what is the relation between these four quantities? We have to find out the relation between these four quantities. So deducing the relation, मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में रिलेशन अगर बनाना हो तो आप कैसे उसको रिलेशन आप बना सकते हो, वो इस थ्योरी में आपको देखना है, ठीक है। तो याद रखो, जैसे कोई डिपेंडेंसी अगर दी हुई है कोई फिजिकल क्वांटिटी में, तो आपको जस्ट क्या करना है, ये प्रोपोर्शनलिटी मतलब यहाँ से जो है सिंबल वो निकाल देना है, वहाँ पे प्रोपोर्शनल जो कांस्टेंट हम रखते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने यहाँ पे के एज्यूम किया है, और यहाँ पे कोई भी टर्म मान लो कि x, y और z, ये तीनों पे हमने एक्स्ट्रा टर्म्स यहाँ पे रख दिए। इस इक्वेशन को नंबर फर्स्ट दो, क्लियर। अभी इस लेफ्ट हैंड साइड जो पार्ट है वो यहाँ से उठाओ। चलो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, टाइम पीरियड, t इज़ अ टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला m0, l0 एंड t1, क्योंकि ये टाइम पीरियड है। चलो, k तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होता नहीं है, ठीक है, तो इसको निकाल दो। चलो, अभी राइट हैंड साइड का फर्स्ट पार्ट है, वो क्या है, लेंथ का क्या होता है, m0, l1 एंड t0, और इसका कितना पावर है बेटा, x पावर है। चलो, x पावर मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, इसको हम ओनली l रेज़ टू x लिख सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि अभी तक तो देखो बेसिक कर रहे थे इसलिए पूरा लिखते थे, अभी आप ऐसे शॉर्ट में लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि एग्जाम्पल में आप यूज़ कर रहे हो ना। अगर डायरेक्टली कोई फिजिकल क्वांटिटी को मेंशन करनी हो आपको तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आप एग्जाम्पल अगर सॉल्व कर रहे हो तो उसमें आप ऐसा शॉर्टकट लिख सकते हो।
क्योंकि इसमें मास नहीं है और टाइम नहीं है, ओनली लेंथ है, तो लेंथ का L1 1 और x मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा L⁻⁴x। चलो राइट हैंड साइड का सेकंड पार्ट क्या होगा, चलो सेकंड पार्ट यहाँ पे राइट हैंड साइड का मास है, मास के लिए क्या लिखते थे हम m1⁻⁴y। चलो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो बेटा, क्या होगा m⁻⁴y। गॉट इट। चलो राइट हैंड साइड का थर्ड पार्ट क्लियर। चलो इट इज़ अ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में क्या होगा L1 and t−2⁻⁻z। सो वी कैन मल्टीप्लाई with length L⁻⁻z and t⁻⁻2z. So all is clear, all the physical quantities dimensional formula is clear. So we have to equating the parts of left hand side as well as right hand side. So the last duty is to solve out all the physical quantities equation by equating the left hand side part. Left hand side में क्या था, तो लेफ्ट हैंड साइड में याद रखो यहाँ पे था m0 L0 एंड t1, ये लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट था। चलो राइट हैंड साइड में यहाँ पे k था, k का तो नहीं होता, हमारे पास L⁻⁻x का है, L⁻⁻x का डायमेंशनल फार्मूला L⁻⁻x ही है, यहाँ पे L⁻⁻x लिख देते हैं। क्लियर। चलो m⁻⁻x दैट मीन्स मास का डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पे क्या है m⁻⁻y है, m⁻⁻y हो गया। क्लियर। चलो यहाँ पे है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का क्या है हमारे पास, तो L⁻⁻z है, L⁻⁻z एंड t⁻⁻2z। क्लियर, t⁻⁻2z। सो m0 L0 t1 क्लियर, तो my L⁻⁻x ठीक है। और देखो L⁻⁻2 क्या लिख सकते हैं, इसमें x है और इसका पावर z है, तो दोनों का सम करो तो x + z हो जाएगा। चलो और t का कितना होगा -2z, समझ में आ रहा है। क्लियर। चलो इक्वेट करो, तो यहाँ पे m का पावर 0 है और यहाँ पे m का पावर y है, तो y = 0 लिख सकते हैं। क्लियर। चलो यहाँ पे l का पावर कितना है x + z और यहाँ पे l का पावर कितना है 0 है। क्लियर, तो x + z = 0। चलो यहाँ पे कितना है -2z है और यहाँ पे t का पावर 1 है, सो दैट z = -1/2, z = -1/2। चलो z की वैल्यू मिल गई, y की मिल गई, अभी x की चाहिए, तो इस इक्वेशन में वैल्यू रखो। तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, z की वैल्यू यहाँ पे रखो, तो -1/2 = 0, तो x = क्या होगा 1/2। आया समझ में। चलो x y z की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखो, तो t = k L⁻⁻x, x मीन्स 1/2, m⁻⁻y, y means 0 and g⁻⁻z, z means -1/2. So we can write m⁻�0 that is 1, L⁻1/2 एंड इसको प्लस करने के लिए नीचे ले जाओ तो g⁻1/2 लिख सकते हैं, तो t = k, इसको कॉमन पावर लिख सकते हैं 1/2। क्लियर। चलो तो t = k, इसको अंडर रूट लिख सकते हैं 1/2 है, तो अभी k तो कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट की जगह पे हम 2π रख देते हैं। क्यों 2π रखा, क्योंकि याद रखो कोई भी एक यूनिट सर्कल कंप्लीट करने के लिए, पूरा एक टाइम पीरियड कंप्लीट करने के लिए कितना 2π रेडियन चाहिए। यहाँ पे एक ऑसिलेशन कंप्लीट जब होता है तब 2π रेडियन वो देता है, तो यहाँ पे 2π रेडियन का यहाँ पे हमने एंगल रखा है, सो दैट्स वाई पुटिंग 2π हियर। ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, t = 2π√L/z is a formula for simple pendulum, time period of simple pendulum, which is given by t = 2π√L/z. So what is the conclusion here? The conclusion is that
if you have given only physical quantity which is depends on like first, second and third, so you have to put x, y, z on the power of this physical quantity, and by equating the left hand side and right hand side the part of that physical quantity, you can find the x, y, z value, then put this value on the power of that physical quantity and you can find the equation from that, from the given data. Clear? So it is the main purpose to design any physical equation. I can say that it is also helping us to design a various kind of physical equations. ठीक है, कोई भी फिजिकल इक्वेशन अगर बनाना है तो इस ये कंसेप्ट जो पूरा है उसके तहत हम बना सकते हैं. क्लियर? ओके, थैंक यू वेरी मच.